Good evening, friends. Today, my name is Avdut Apte, and I'm the owner of Car Comforts Goa. Uh, I'm basically from the ser- mining industry. We are giving service support to most of the companies in Goa, like Vedanta, Fomento, Quick Chocolates, Dempos, VM Sargaonkar, etc., for maintaining their mining machines. Now, very briefly, we would go through how an air conditioning system works. As you can see in the basic picture, which is enclosed along with this thing, the air conditioning system comprises of four major parts. One is a compressor, one is a condenser, evaporator, receiver dryer, and the necessary electricals or the conveyor, the belts driving these particular parts. Now, compressor basically consists of two types. One is the one with seven pistons, which is normally used in automotive industry, and the other one which is having seven pistons, which is normally used in the mining industry. Now condenser, basically, if you can see the above picture, there are two sections. One is a section which is marked in red, and the other section which is marked in blue. Now the one which is marked in red is on the high pressure side, which starts from the compressor doing the work of pumping the gas. Now this gas is cooled in the condenser before it enters the receiver dryer, which is being filtered in the receiver dryer, and it goes to the expansion wall. At the expansion wall, the expansion of gases take place, resulting in the lowering of temperature. Now, there is a fan which is provided ahead of the evaporator, which pushes the cold air into the cabin. Now, this expanded gas is taken back into the compressor via the suction pipe, which is identified as a blue line. Now, basically, in mining industry, we have major failures which occur on the compressor. Now, we shall be highlighting the various reasons of premature failure of compressors, because this becomes a real burning point. As साहब आपका compressor 7 दिन में उड़ गया, आपका compressor 3 दिन में उड़ गया, are the kind of comments that we normally tend to get from the industry. Now, there are very basic reasons why the compressor fails, and in the next few minutes, we'll try to highlight as how the system needs to be maintained, how the system needs to be cleaned periodically to prevent premature failure of compressor. इनके ताकि बेसिक कंपोनेंट्स है चार, जिसमें एक है कंप्रेसर, दूसरा है कंडेंसर, तीसरा है इवेपोरेटर, चौथा है होजेस, पांचवा है रिसीवर ड्रायर, छठवां है एक्सपेंशन वॉल, सातवां है वायरिंग हार्नेस, थर्मोस्टेट, एलपीएचपी स्विच, बेल्ट वगैरह वगैरह. अभी बेसिकली कंप्रेसर जैसे हमने बताया कि बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, जिसमें कोमाट्सो यूज़ करती है डेंसो का, वैल्यू का, बहुत सारे मशीनरी यूज़ करते हैं सैंडन का. अभी ज़्यादातर कंप्रेसर जो माइनिंग इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ये 7 पिस्टन के होते हैं. और इसकी कैपेसिटी जनरली 135 टू 138 सीसी की होती है. अभी कंप्रेसर में जनरली ऑयल रहता है तकरीबन 50 से 60 ml, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है. अभी जब कभी कंप्रेसर कहीं मशीन में फिट होता है, तो ज़रूरी है कि आप कंप्रेसर को पूरा खाली करो और उसमें कम से कम 240 से 250 ml ऑयल ऐड करो. अभी ये 250 ml क्वांटिटी भी कभी कभी बढ़ानी पड़ती है. अगर जैसे मान के चलो कि PC 1250 मशीन है, जिसके होज लेंथ तकरीबन 15 मीटर से आगे है, PC 1250 में 16-17 मीटर के होजेस है, तो आपको कंप्रेसर को ऑयल तकरीबन 50 से 60 ml एडिशनल डालना पड़ेगा. कंडेंसर ये दूसरा मेजर कंपोनेंट है. अभी जैसे कैटरपिलर का मशीन हो, तो कैटरपिलर का जनरली कंडेंसर कॉपर में रहता है, जिसको ट्यूब एंड फिन्स टाइप में ये आता है. बाकी कोमाट्सू यूज़ करती है माइक्रोफिन्स के कंडेंसर, जो पैरेलल फ्लो रहेंगे या सीरियल फ्लो रहेंगे. ये माइक्रोफिन्स कंडेंसर में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि अगर मान के चलो कि ऑयल का कॉन्टेमिनेशन अगर बहुत ज़्यादा हो, या कुछ आपका रिसीवर ड्रायर बर्स्ट हो गया, तो ये माइक्रोफिन्स के कंडेंसर जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं. और अगर एक बार ये ब्लॉक हो गए, तो इसको किसी भी हालत में आप इसको क्लीन नहीं कर सकते. और अगर ये कंडेंसर अगर पूरा 100% उसके एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं चलेगा,
तो ये आपका कंप्रेसर बार बार उड़ाते जाएगा। जैसे मान के चलिए आपने गैस डाला तो कुछ समय के लिए आपका डिस्चार्ज प्रेशर 200-220 रहेगा, आपके अनजाने में ये डिस्चार्ज प्रेशर 300, 350, पौने 400 तक चला जाएगा। और ये जब पौने 400 पे चला जाता है, इसका यही मतलब है कि एक्सपांशन वॉल्व में आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटक गया है, जिसकी वजह से हेड प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि रिटर्न गैस वापस नहीं आ रही है। और रिटर्न गैस जब वापस नहीं आती है तो कंप्रेसर को लुब्रिकेशन नहीं मिल पाता है। अब ये लुब्रिकेशन बेसिकली एक तो है कंप्रेसर ऑयल की वजह से है जो आप लोग कंप्रेसर में डालते हैं, और दूसरा है 134A गैस जो रिटर्न होके वापस आता है। अभी पीरियोडिक मेंटेनेंस में क्या करना है, आपको कंडेंसर को पानी से या हवा से काफ़ी रेगुलरली क्लीन करना है। अभी इसमें क्लीनिंग से क्या होता है कि अगर मिट्टी या पूरी कंडेंसर के ऊपर भर गई है तो हीट डिसिपेशन नहीं कर पाता है। अगर हीट डिसिपेशन नहीं हुआ तो हेड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। हेड प्रेशर बढ़ेगा तो एक्सेस गैस जो है 350-400 के अगर प्रेशर जो चला जाता है वो प्रेशर रिलीफ वाल्व में से या कंप्रेसर के रिलीफ वाल्व में से निकल जाएगा। कैबिन फिल्टर को आपको रेगुलरली क्लीन करना है, क्योंकि अगर ये क्लीन नहीं करेंगे तो शॉर्ट साइकिलिंग ऑफ एयर चालू हो जाता है, और जहाँ कि आपका ब्लोअर कंटिन्यूस चालू रहता है वो जहाँ से जगह मिलेगा वहाँ से हवा खींचना शुरू कर देता है। तो कैबिन के अंदर आपको एसी परफेक्ट रहते हुए भी कूलिंग नहीं आएगा। तीसरा है आपको एसी के बेल्ट रेगुलरली चेक करने हैं टेंशन के लिए, क्योंकि जहाँ इंजन का 300 हॉर्स पावर से भी ज़्यादा है तो उसका आवाज़ इतना आता है कि लूज बेल्ट का आवाज़ मालूम नहीं पड़ता। जैसे हमने छोटी गाड़ी में अगर जा रहे हैं और कहीं किसी का बेल्ट लूज है तो काफ़ी डिस्टेंस आपको उसका छुई 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 आवाज़ सुनाई देगा, लेकिन मशीन में इंजन का आवाज़ इतना तगड़ा होने की वजह से ये आवाज़ बिल्कुल आपको सुनाई नहीं देगा। अभी इसका वजह ये हो जाता है कि जैसे ही बेल्ट लूज़ हो गया तो ये क्लच के ऊपर से स्लिप करना शुरू कर देता है, बिकॉज जितना उसको टेंशन क्लच को घुमाने के लिए चाहिए वो नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से अगर क्लच गर्म हो जाता है, क्लच गर्म होने की वजह से आपका बेरिंग उड़ जाएगा और क्लच भी उड़ जाएगा। नो, ये दोनों कंडीशन आती है अगर आपका बेल्ट बहुत ज़्यादा लूज़ है तो। भी चौथा कंडीशन है जैसे कूलिंग कम आ रहा है, जैसे 2 साल में या 2.5 साल में आपको गैस की एडिशन की ज़रूरत पड़ती है। ये एडिशन की ज़रूरत इसके लिए पड़ती है क्योंकि ज़्यादातर ट्यूबिंग रबर का है। जैसे 134A गैस का ट्यूबिंग है, ये मल्टी लेयर्ड रबर है जिसमें से गैस परमिएट होता है। परमिएशन का मतलब है कि गैस पहले लेयर से दूसरी लेयर में जाता है, दूसरी लेयर से तीसरी लेयर में जाता है, और 1-1.5-2 साल में उसका प्रेशर धीरे धीरे कम होता है, जो टॉप अप करना ज़रूरी है। अगर पंक्चर रहेगा तो सीधा 0 पे चला जाएगा, अगर गैस पाइप कट हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन इसके बावजूद भी गैस प्रेशर कम होता है, इसका वजह है परमिएशन ऑफ गैस थ्रू रबर। डिस्कस करेंगे जनरल पैरामीटर्स एयर कंडीशनिंग सिस्टम के क्या होने चाहिए। जैसे एक आइडियल सिस्टम में गैस प्रेशर सक्शन में रहना चाहिए 30 और 40 के बीच में, डिस्चार्ज रहना चाहिए 200 और 200 बीच में। अब ये दोनों प्रेशर्स एम्बिएंट टेम्परेचर अगर मान के चलिए आपका 37-38 डिग्रीज है तो ये आइडियल डिस्चार्ज और सक्शन प्रेशर रहेंगे। अगर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर 40-45 के आगे चला गया तो ये दोनों फिगर्स चेंज हो जाएंगे। सक्शन रुकेगा 50-60 के बीच में, डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा 260-270 के आसपास। अच्छा, दूसरा आप कुछ पैरामीटर चेक करना है कि कंडेंसर में, जैसे कंडेंसर का इनलेट टेम्परेचर तकरीबन 60 या 7 डिग्री सेंटीग्रेड का होना जनरली होता है, और प्रेशर रहेगा 200-220 में। कंडेंसर का आउटलेट 30 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहना चाहिए, प्रेशर वही है। अगर आप कंडेंसर को हाथ लगाएंगे, जैसे इनवर्ड जहाँ से गैस कंप्रेसर से आ रहा है वहाँ पे कंडेंसर इतना गर्म रहेगा कि आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, और डिस्चार्ज पोर्ट पे या आउटलेट पोर्ट पे आप कंडेंसर को हाथ लगा के आपका हाथ आप रख सकते हो, इतना गर्म रहेगा। जैसे 20 या 30 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप इनलेट और आउटलेट के बीच में होना चाहिए। अगर आउटलेट आपका बहुत ही ठंडा है, बिल्कुल गर्म नहीं है, इसका मतलब है आपका कंडेंसर ब्लॉक है। अगर इनलेट टेम्परेचर के पास कंडेंसर बहुत गर्म है और आगे जाके वो बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा है, जैसे मान के चलिए कि सर्पेंटाइन फ्लो है। अभी सर्पेंटाइन फ्लो में आपको
ग्रेजुअल टेम्परेचर डिफरेंस मालूम पड़ेगा। आप हाथ लगाते जाओ तो पहले बहुत गर्म, फिर थोड़ा कम गर्म, फिर और थोड़ा कम गर्म, और थोड़ा कम गर्म, और जैसे आउटलेट पे जाएंगे तो 30-40 डिग्री तक ये टेम्परेचर ड्रॉप होना चाहिए। ये आइडियल कंडीशन अगर आपका कंडेंसर क्लीन है तो। अगर कंडेंसर इंटरनली ब्लॉक्ड है तो आपको पैचेस मिलेंगे, कहीं पे कंडेंसर बहुत गर्म रहेगा, कहीं पे बिल्कुल ठंडा रहेगा। तो इस हालत में अगर ऐसा कंडेंसर आपको सिस्टम में मिल रहा है, इसका मतलब है आपका कंप्रेसर का लाइफ जल्दी ख़राब होने वाला है, क्योंकि जो हीट डिसिपेशन कंडेंसर करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, और जिसकी वजह से कंप्रेसर बार बार हाई प्रेशर में चला जाएगा, और हाई प्रेशर की वजह से कंप्रेसर का लाइफ काफ़ी हद तक कर्टेल हो जाता है। तीसरा पार्ट है रिसीवर ड्रायर, जो बेसिकली फ़िल्टर भी है। इसमें इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर लगभग वही होने चाहिए। अगर इनलेट टेम्परेचर गर्म है और आउटलेट टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा है, इसका मतलब आपका रिसीवर ड्रायर एक्सपांशन वॉल का काम कर रहा है। जैसे आउटलेट टेम्परेचर में वॉल रिसीवर ड्रायर फ्रीज हो रहा है। आपका रिसीवर ड्रायर अगर फ्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि रिसीवर ड्रायर आपका ब्लॉक है, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर ये भी ब्लॉक है तो भी इसका लोड कंप्रेसर के ऊपर आता है, क्योंकि गैस फ्री फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जैसा ज़रूरी है, वैसे ही कंप्रेसर के लाइफ के लिए भी उसका गैस सर्कुलेशन यूनिफॉर्म होना, मतलब जितना गैस कंप्रेसर पंप कर रहा है उतना गैस कंप्रेसर में रिटर्न आना चाहिए। वो अगर नहीं आएगा तो भी कंप्रेसर का लाइफ काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। अभी सक्शन पाइप है, जो इवेपोरेटर के बाहर का पोर्शन है, वहाँ पे टेम्परेचर लगभग 7 से 11 डिग्री के बीच में रहेगा। डिस्चार्ज पाइप है, जो कंप्रेसर एंड है, वो तकरीबन 70-80 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा, जिसमें आप हाथ लगा के आपको हाथ निकालना पड़ता है। और कैबिन के अंदर की अगर आप बात करेंगे तो ग्रिल टेम्परेचर 7 से 11 के बीच में आएगा, अगर आपका पूरा सिस्टम सही तरीके से चल रहा है तो। अभी डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ फेलियर पे। जैसे बिल्कुल कूलिंग नहीं आ रहा है, या कम कूलिंग आ रहा है, या इंटरमिटेंट कूलिंग आ रहा है, या इनिशियली कूलिंग आ रहा है लेकिन कुछ टाइम के बाद में कूलिंग गायब हो रहा है। पांचवा रीज़न है कंप्रेसर क्यों फेल हो रहा है, और छठवा है गैस प्रेशर सडनली 0 पे क्यों चला जाता है। अच्छा, चलिए इसी को एनालाइज करते हैं आगे। पहला रीज़न है नो कूलिंग। अभी एसी अगर बिल्कुल ठंडा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है या तो आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं होस पंक्चर्ड है, गैस 0 पे जा चुका है, कंप्रेसर को सप्लाई नहीं आ रहा है, आपके मशीन में से बेल्ट मिसिंग है। दूसरी वजह हो सकती है कि कंडेंसर डेड होने की वजह से, कंडेंसर फैन डेड होने की वजह से बहुत सारे मशीन्स पे कंडेंसर एक्शियल फ्लो जैसे इन लाइन विथ फैन नहीं होता है। ये अलग से इलेक्ट्रिकल का एक पंखा दिया जाता है, जिसकी वजह से कंडेंसर को ठंडा रखने में मदद होती है। अगर ये कंडेंसर बंद पड़ा है, कंडेंसर का फ़ैन बंद पड़ा है, तो हेड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपका हाई प्रेशर स्विच एक्टिवेट हो जाता है। जो 350 के आगे अगर प्रेशर चला गया तो हाई प्रेशर स्विच एक्टिवेट होने की वजह से कंप्रेसर को कट ऑफ कर देगा। ये कट ऑफ इसके लिए, ये प्रेशर इसके लिए ज़रूरी है कि कंप्रेसर हाई प्रेशर की वजह से अगर चलता रहा तो वो जल्दी फेल होने का चांस है। या दूसरा है कि कंप्रेसर के ऊपर एक हाई प्रेशर का रिलीफ वाल्व रहता है। अगर ये 350-400 प्रेशर के आगे चला गया तो एक्सेस गैस जो है ये कंप्रेसर रिलीज़ कर देगा, और कंप्रेसर रिलीज़ कर देगा तो जैसे ही अगर कंप्रेसर 50% गैस अगर रिलीज़ कर देता है जो 350 के आगे चला जाता है, तो कूलिंग ये मशीन में सिर्फ आपको सुबह में और शाम को मिलेगी। पीक आफ्टरनून में ये मशीन ठंडा नहीं करेगा, या कूलिंग उसका प्रॉपर नहीं आएगा। चौथा है, अगर मान के चलिए कि आपका हेड आपके स्विचेस बाईपास करके रखे हैं, एलपी भी बाईपास किया हुआ है, हाई प्रेशर भी बाईपास किया हुआ है, तो इस हालत में अगर गैस सिस्टम में गैस नहीं है तो आपका कंप्रेसर ड्राई चलेगा, क्योंकि क्लच को कट ऑफ करने वाले आपने सब बाईपास से उसका आपने हटा दिए, जिसकी वजह से कंप्रेसर ड्राई चलने की वजह से कंप्रेसर मैक्सिमम 30 या 40 मिनट में कंप्रेसर सीज हो जाता है। 30-40 मिनट भी बहुत हो गया, 7-8 मिनट में सीज हो जाता है अगर कंप्रेसर में गैस और ऑयल नहीं है तो। अच्छा, दूसरा पॉइंट है लो कूलिंग या लो एयर फ्लो।
लो कूलिंग जनरली आता है अगर गैस का क्वांटम ऑफ गैस कम हुआ है। जैसे मान के चलो आपने डेढ़ साल पहले आपने गैस डाला है और अभी आप जब चेक कर रहे हो तो ये गैस डिस्चार्ज 160 170 पे ही आके रुक रहा है। और अगर 170 पे आके रुक रहा है तो आपका मशीन ठंडा नहीं करेगा जब तक कि आप उसको गैस ऐड करके ये प्रेशर 200 220 तक नहीं ले जाए। ये जैसे मैंने जैसे पहले कहा कि गैस का प्रेशर ऑटोमेटिकली भी कम होता है क्योंकि गैस होजेस से परमिएट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परमिशन ऑफ गैस थ्रू रबर होजेस। दूसरा लो कूलिंग का वजह है, मान के चलिए कि आपके बेल्ट्स लूज हैं तो कंप्रेसर को आरपीएम नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जितना हेड प्रेशर चाहिए 300 350 का ये कंप्रेसर जनरेट ही नहीं कर पाएगा। तीसरा लो कूलिंग का वजह है आपका अगर कंडेंसर मान के चलिए कि पूरा मिट्टी से भरा है तो जो एफिशिएंसी कंडेंसर की होनी चाहिए ये एफिशिएंसी डिफीट हो जाती है, जो फंक्शन ही डिफीट हो जाता है। जैसे कंडेंसर अगर क्लीन है तो हेड प्रेशर आपका जैसे आप मशीन ऑन करते हो ये हेड प्रेशर 200 या 250 के बीच में स्टडी रहेगा। जैसा आप इंजन का आरपीएम रेस करते हो तो ये हेड प्रेशर थोड़ा सा हल्का सा बढ़ के वापस 200 पे आ जाएगा। अगर कंडेंसर ब्लॉक है पूरा तो इसका मतलब है आपका कंडेंसर के पीछे जो रेडिएटर भी है वो भी ब्लॉक है और जिसकी वजह से रेडिएटर हवा जो कंडेंसर के मार्फत रेडिएटर में जाती है वो नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से भी हेड प्रेशर काफ़ी हद तक दोपहर के टाइम में बढ़ना शुरू कर देगा। चौथा है अगर कूलिंग कम आ रहा है तो इवेपोरेटर कॉइल आपका ब्लॉक है पूरा मिट्टी से, या फिर फिल्टर जो है वो फिल्टर पूरा मिट्टी से भर चुका है जिसकी वजह से एयर पैसेजेस उसकी जो गैप है या जिसमें से हवा जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, तो जिसकी वजह से भी ये शॉर्ट साइकिलिंग होके कैबिन का हवा कैबिन में ही दोबारा खींचा जाएगा फ़ैन के मार्फत और ये गर्म ही रहेगा। तो जो ठंडा हवा फिल्टर के मार्फत से आना चाहिए वो नहीं आएगा। चौथा रीज़न है इंटरमिटेंट कूलिंग, जैसे कूलिंग आ रहा है और गायब हो रहा है, कूलिंग आ रहा है और गायब हो रहा है। ये हो सकता है रिसीवर ड्रायर ब्लॉक होने की वजह से भी, या कंडेंसर ब्लॉक होने की वजह से, या एक्सपेंशन वॉल मैल फंक्शनिंग की वजह से। अभी जैसे मैंने पहले इसमें बताया कि अगर आपका कंडेंसर ब्लॉक है तो आपको कंडेंसर पैचेस में गर्म मिलेगा, इनलेट पॉइंट पे बहुत गर्म नहीं मिलेगा, उसके बाद में जैसे धीरे धीरे वो टेम्परेचर ड्रॉप होना चाहिए वो नहीं होगा और आपको कोल्ड पैच बीच में हॉट पैच ये मिलेगा। दूसरा है एक्सपेंशन वॉल, अगर उसमें कैपिलरी सेंस नहीं कर पा रही है, कैपिलरी टूटी है तो भी कूलिंग आएगा और गायब हो जाएगा। तीसरा जैसे मैंने पहले भी बताया कि रिसीवर ड्रायर अगर ब्लॉक है तो आपको रिसीवर ड्रायर के इन में टेम्परेचर बहुत गर्म मिलेगा और आउटलेट में आपको रिसीवर ड्रायर ठंडा मिलेगा। आपका छठवां फैक्ट है ब्लॉक कंडेंसर, जैसे माइक्रोफिन्स कंडेंसर है। माइक्रोफिन्स कंडेंसर में अगर पूरी मिट्टी भर जाती है या फिर वो उसका हीट डिसिपेशन बिल्कुल ही कम हो जाता है, अगर हीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो कूलिंग इंटरमीडिएट बिल्कुल बंद हो जाएगा। चौथा है अगर इवेपोरेटर भी अगर मिट्टी से भरा है तो भी वही आएगा। अगर आपका इलेक्ट्रिकल पंखा डेड है या लो आरपीएम पे घूम रहा है या नहीं घूम रहा है तो भी आपको इंटरमिटेंट कूलिंग आएगी। अभी और कुछ फेलियर की ओर चलते हैं। जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है गुड इनिशियल कूलिंग बट नो कूलिंग आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। अभी जैसे आप देख पा रहे हो कि फ्रीजिंग ऑफ एक्सपेंशन वॉल, मॉइस्चर इन द सिस्टम। हम लोग बहुत बार देखा है कि माइनिंग इंडस्ट्री में लोग नाइट्रोजन यूज़ नहीं करते। ये छोटा सा अपना फ्रिज का कंप्रेसर यूज़ करते हैं प्रेशर जनरेट करने के लिए और इससे लीक टेस्ट लेते हैं। अभी नाइट्रोजन इसके लिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है और जैसे आप फ्रिज का कंप्रेसर यूज़ करते हो टेस्टिंग के लिए तो वो हवा जो खींच रहा है वो नॉर्मल एयर है जिसमें ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर रहता है और यही मॉइस्चर आपके सिस्टम में चला जाए तो ये एक्सपेंशन वॉल को ब्लॉक कर देती है। जब जहाँ पे अगर एक्सपेंशन वॉल के पास में पानी अगर आ गया, मॉइस्चर आ गया तो वो फ्रीज़ हो जाता है। वो फ्रीज़ होने की वजह से आपका मोमेंटरी सर्कुलेशन ऑफ गैस बंद हो जाएगा और हेड प्रेशर बढ़ना शुरू कर देगा, तो जिसकी वजह से भी कूलिंग ड्रॉप हो जाएगी।
बहुत बार होता है कि लॉन्ग कंडेंसर का और कंडेंसर फैन का लोकेशन गलत जगह पे है। जैसे मान के चलिए कि इंजन आपका गर्म हो गया या रेडिएटर गर्म हो गया, तो वो रेडिएटर का गर्म हवा आपका पंखा खींच रहा है, कंडेंसर का पंखा खींच रहा है, तो 90 डिग्रीज़ का हवा आपके कंडेंसर के ऊपर जा रहा है, तो ये कंडेंसर का पूरा एफिशिएंसी भी ज़ीरो पे आ जाएगा, क्योंकि ये कंडेंसर का फंक्शन है हीट डिसिपेट करना। ये हीट डिसिपेट किए बगैर ये हीट ऐड हो रहा है, या इंजन का हीट कंडेंसर पे जा रहा है, तो एफिशिएंसी ऑफ द एसी विल प्रैक्टिकली गो टू ज़ीरो। अभी बेसिकली हमारा ये एम्फेसिस है पूरे इसमें कि कंप्रेसर फेलियर क्यों आता है। अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक्चुअली हिंदी में इसके लिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे मैकेनिक जो है वो शायद इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो इसके लिए मैं ये पूरा का पूरा हिंदी में ही कर रहा हूँ। अभी जैसे मैंने वो आपको बोला कि कंप्रेसर में जब कंप्रेसर आता है किसी मैन्युफैक्चरर से, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंप्रेसर ऑयल रहता है, जो जैसे कभी 50 ml रहेगा, कभी 60 ml रहेगा, कभी 100 ml रहेगा, लेकिन 180 ml या 160 ml कभी नहीं रहेगा। तो आपको जब कभी आप नया कंप्रेसर रिप्लेस करते हो, तो ज़रूरी है कि आप पुराना ऑयल पूरा का पूरा निकाल दो और उसमें नया 134A ऑयल 160 ml टू 100 and 200 ml डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द होजेस आपको ऐड करना है। नॉर्मल मशीन है, नॉर्मल गाड़ी है, तो 160 ml काफ़ी है, लेकिन आपके पाइप के लंबाई अगर 15 मीटर या 20 मीटर के आसपास है, तो आपको कम से कम 40-50 ml ऑयल एडिशनल आपको डालना है। दूसरा है, देखिए कि ऑयल की क्वालिटी 134A ऑयल की क्वालिटी ये अच्छी हो, अगर ये अच्छी नहीं है तो भी ये 134A गैस से मिक्स या क्या बोलते हैं उसको, वो जेल नहीं करेगी, जिसकी वजह से ऑयल के कॉन्टेमिनेशन होना शुरू हो जाएगा, जो कॉन्टेमिनेशन आगे जाकर आपके रिसीवर ड्रायर या माइक्रोफिन्स कंडेंसर को ब्लॉक करना शुरू कर देगा। चौथा है एरेक्टिक फेलियर और सिस्टम गोइंग इनटू वैक्यूम। मैंने जैसे पहले ही कहा कि अगर आपका कंडेंसर इंटरनली ब्लॉक्ड है, तो ये जैसे आपका कार्बन फॉर्मेशन या ग्रैन्यूल्स आपके रिसीवर ड्रायर के फूटे हुए कंडेंसर की ओर चले जाएंगे, तो मोमेंटरीली कंडेंसर पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से हेड प्रेशर आपका बढ़ना शुरू कर देगा। और जब कभी आपका हेड प्रेशर बढ़ता है, जैसे जब हेड प्रेशर बढ़ना मतलब गेज का लाल जो गेज है वो 300-350 के आगे चला जाता है, और वो अगर 350 आगे चला गया तो कंप्रेसर ओवरलोडिंग होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर का लाइफ काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएगा। अभी सबसे बड़ा मैंने फेलियर रेट देखा है माइनिंग इंडस्ट्री में कि जब कभी पाइप रैप्चर हो जाता है, तो जब वो रैप्चर होता है कट होने की वजह से, इट ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक अ बलून, और बलून में से जैसे हवा निकल जाता है वैसे ही वो पाइप में से पूरा का पूरा गैस और बहुत सारा ऑयल वहाँ से निकल जाएगा। अभी जैसे कि मैंने कहा कि हमारे ऑटोमोटिव कंप्रेसर्स ये हर्मेटिकली सील्ड नहीं है। जैसे हमने फ्रिज में रहता है कि जो ऑयल डालते हैं वो कंप्रेसर में ही रहता है और बाकी सिस्टम में सिर्फ गैस घूमते रहता है, वैसे माइनिंग मशीन्स या ओपन कंप्रेसर में नहीं होता है। ओपन कंप्रेसर में ऑयल कंडेंसर में, कूलिंग कॉइल में, इवेपोरेटर में, होज में, सब जगह घूमते रहता है। और मान के चलो कि अगर एक आधा पाइप बस्ट हो गया तो ये 60 to 70% ऑयल आपका सिस्टम में से निकल जाएगा, जिसकी वजह से ये आपको ऑयल का रिप्लेनिश करना ज़रूरी है जब कभी आप पाइप रिप्लेस करते हो। अच्छा, बहुत बार माइनिंग इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि आपने पाइप जो आपका फट गया और आपके पास OEM से आया हुआ या रिप्लेसमेंट पाइप अवेलेबल नहीं है, तो आप पाइप निकाल के किसी हाइड्रोलिक होज मैन्युफैक्चरर के पास उसको भेज देते हो बनाने के लिए। अभी हाइड्रोलिक होज वाले को मालूम नहीं है ये पाइप का फंक्शन क्या है, तो वो एंड फिटिंग के हिसाब से उसको कट करके बीच में अपना हाइड्रोलिक होज लगा देता है और ये पाइप कस्टमर को रिटर्न कर देता है। अभी ये हाइड्रोलिक होज, बिकॉज इट इज़ नॉट कॉम्पेटेबल विथ 134A गैस, दिस क्रिएट्स अ हैवॉक ओवर अ पीरियड ऑफ 1 or 2 months टाइम। जैसे 134A गैस है, ये हाइड्रोलिक ऑयल से रिएक्ट करना शुरू कर देता है, हाइड्रोलिक पाइप से रिएक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यू विल फाइंड लूज ग्रैन्यूल्स और लूज कार्बन फॉर्मेशन कमिंग आउट ऑफ द पाइप। कुछ समय के बाद में रबर के टुकड़े छूटना शुरू हो जाता है और ये
रबर के छोटे छोटे टुकड़े आपको कंप्रेसर के स्वॉश प्लेट में जाके फंस जाते हैं, कुछ रबर के रिसीवर ड्रायर में जाके अटक जाते हैं, कुछ एक्सपेंशन वॉल में जाके फंस जाते हैं, कुछ कंडेंसर अगर माइक्रोफिन्स कंडेंसर है तो पूरा का पूरा कंडेंसर बर्बाद कर देते हैं। अभी आप उसको कितना भी नाइट्रोजन से फ्लश करो, ये कंडेंसर कभी क्लीन नहीं होगा, और इस हालत में वो कंडेंसर को दोबारा यूज़ करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये कंप्रेसर आपका कंप्रेसर बार बार उड़ाते जाएगा। आप कितने भी नए कंप्रेसर डालो, ये 7 दिन में कंप्रेसर रिप्लेसमेंट आपको आना ज़रूरी है, रिप्लेस करना ज़रूरी है, क्योंकि आप उसका रूट कॉज है कंडेंसर को ब्लॉक हो जाना। और कंडेंसर का ब्लॉक क्यों होना? क्योंकि आपने गलत पाइप यूज़ किया है एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। इस वीडियो के बाद में मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ इसमें ऐड करूँगा, जो आप देख सकते हो कि कंप्रेसर की स्थिति क्या हो जाती है जब आप रबर के टुकड़े पिस्टन के अंदर आते हैं और वो सॉस प्लेट को तोड़ देते हैं। सॉस प्लेट कंप्रेसर के बैकएंड में रहता है, जो जैसे एक एक पिस्टन का पंपिंग हो गया तो वो प्लेट उसको बंद कर देती है, रिटर्न गैस जाने से बंद करती है। अभी ये टूटने की वजह से ना कंप्रेसर पंपिंग कर पाता है, ना कंप्रेसर डिस्चार्ज होल्ड कर पाता है, मतलब ये कंप्रेसर की लाइफ लगभग ख़त्म हो जाती है। दूसरा और एक वजह है कि माइक्रोफिन्स कंडेंसर में कभी कभी बहुत हाई प्रेशर से धोया जाता है। अभी इतना हाई प्रेशर से धोते हैं कि ये फिन्स पूरी की पूरी बेंड हो जाती है, और जिसकी वजह से हीट डिसिपेशन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। वो इस हालत में कंडेंसर चलेगा, लेकिन जैसे आपका पीक समर अगर आ गया और टेम्परेचर आपके 48-49 डिग्रीज तक पहुँचेंगे तो ये कंडेंसर इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। दूसरा है कंप्रेसर का लाइफ कम होना या कंप्रेसर जल्दी ख़राब होना, प्री मैच्योर फेलियर। इस बहुत जगह पे जैसे लो प्रेशर स्विच ख़राब हो गया तो उसको बाईपास किया जाता है कि मशीन ऑपरेशन में लानी है, और मशीन ऑपरेशन में लाने का प्रेशर इतना रहता है कि जो एलपी स्विच या एसपीसी जिसको बाईपास किया जाता है वो कंप्रेसर होने तक बाईपास ही रहती है। हमने एक जगह पे देखा है कि थर्मोस्टेट एक मशीन में उड़ गया, उसको रात को टेक्नीशियन ने उसको बाईपास कर दिया, और ये इन्फॉर्मेशन सेकेंड डे शिफ्ट ऑपरेटर को नहीं दी या मेंटेनेंस वालों को नहीं बताया। अगले 8 दिन में हर 7 दिन एक कंप्रेसर उड़ रहा था PC1250 का, और इसकी वजह जानने के लिए हमको लिटरली मशीन को वर्कशॉप में 1 घंटा वर्कशॉप में ऑन रखना पड़ा। जब ऑन रखा तो मालूम पड़ा जो सिस्टम पैरामीटर सब नॉर्मल है, कूलिंग अच्छा आ रहा है केबिन के अंदर, लेकिन कंप्रेसर कट ऑफ नहीं हो रहा है। अभी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में कंप्रेसर का क्लच बंद होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में ये दोबारा शुरू होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो कंप्रेसर कंटिन्यूसली चलेगा, और जिसकी वजह से क्लच ओवरलोड होकर क्लच जल जाएगा। अभी इनिशियल स्टेज में क्लच इट स्टार्ट टेकिंग हायर करंट, and eventually because of overheating the clutch burns. Now this is another major failure reason of getting a very short life of compressor. अभी जनरली ये बहुत सारे रीजंस मैंने हाईलाइट किए हैं जिसकी वजह से कंप्रेसर का फेलियर बहुत जल्दी आता है। मैंने मेरे डिटेल्स ये एंड के पेज में दिए हैं। कंडीशनिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ तक लगभग 25 मेरे ख्याल से 30 साल हो गए। वी स्टार्टेड विथ कार एयर कंडीशनिंग, माइग्रेटेड ऑन टू बस एयर कंडीशनिंग, एंड देन इवेंचुअली माइग्रेटेड टू truck and mining machines air conditioning. Thanks a lot. Please do subscribe to my channel if you have liked it. Even if you have not liked it, please comment, because this will help us in improvising on the text. Or this is the first blog wherein I'm trying to do a crossover of talk. I don't know how far successful it is, but then your feedback would definitely help me in improvising on the same. Thank you.